Hello students and welcome to G3 e-learning classes. Today we are going to do our chapter number 2nd of class 12th, The Tiger King, written by Kalki. So first of all, I'll tell you something about the author. Ramaswamy Iyer Krishnamurti, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्की. पेन नेम होता है जिस नाम से वो लिखते हैं. जैसे एक्चुअल नेम इनका क्या था, रामास्वामी अय्यर, बट ये जो है अपना नाम चेंज करके अपनी जितनी भी राइटिंग्स थी, अपनी जितनी भी नॉवेल्स थी, वो कल्की नाम से लिखते थे. वॉज अ तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट. He derived his pen name from the suffix of his wife name Kalyani and his name Krishnamurti in Tamil form. His name also represents Kalki Avatara. I hope you all know about the Kalki Avatara. ऐसा कहा जाता है कि जो कलयुग है उसमें जो भगवान विष्णु है वो कल्कि अवतार में पैदा होंगे. The 10th and the last avatar of the Hindu god Vishnu. His writings include over 120 short stories, 10 novel letters, 5 novels, 3 historical romances, editorial and political writings, and hundreds of films and music reviews. So this is all about our author. So let's start our chapter. See, this is the story about a Maharaja of Pratibandhapuram. So he is the narrator of the story and he is telling his own story. So let's start the chapter. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness Jamidar General Khalidar Major Sata Vagraha Samahari Maharaja Dhiraj विश्वा भानु समर्थ श्री जलानी जंग बहादुर MAD ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. See here, the Maharaja, the Tiger King, whose famous name is Tiger King, is you can call him by all these names which I told you here on the screen, and it is mentioned on the screen. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. So now here I am going to tell you that why he is called the Tiger King, how his name, the Tiger King, is so much famous. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of Sutuka bomber will not throw me off track. The Sutuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. Here the author is explaining कि now he is going to tell why he is known as a Tiger King, and he has no intention of pretending in advance only to end in a strategic withdrawal. कि वो जो है वो इसका जो end है वो strategic withdrawal में नहीं चाहते हैं. और यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि अगर सुतुका बॉम्बर मीन्स यहाँ पर एक जापान का ये जो बॉम्बर है उसके बारे में बात कर रहे हैं. इट्स अ वेरी पावरफुल बॉम्ब. अगर वो भी चाहे तो ये ऑथर को अपने ट्रैक यानी कि जो स्टोरी ही इज़ गोइंग टू टेल अस उससे नहीं रोक सकते. एंड सुतुका, अगर सुतुका चाहता है वहाँ से जाना तो वो इस जो स्टोरी को है आधे में छोड़कर जा सकता है. सो यू विल फाइंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी ह्यूमरस. So we will move forward. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. Indomitable means here which is not explained in the easy language, right? Means unyielding.
So right at the start it is imperative to disclose the matter of vital importance. Vital importance means इसकी बहुत ज़्यादा importance है. ओके एंड एवरीवन हु रीड्स हिम, और जो भी कोई इसके बारे में पढ़ता है उसकी बहुत ही ये नेचुरल डिज़ायर होती है कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि वो जो है इस टाइगर किंग से फेस टू फेस मिले. बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट एज भारता सेड, Bharat to Rama about Dashratha, the tiger king has reached that final abode of all living creatures. In other words, the tiger king is dead. See, क्यों ये जो उसकी जो रीडर्स की जो विश है ये फुलफ़िल नहीं हो सकती है, वो इसलिए नहीं हो सकती एज भरत, जैसे भरत ने रामा को बताया था कि जो दशरथ हैं वो अब जो है ही हैज़ पास्ड अवे, मीन्स जो दशरथ है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे. ऐसे ही द टाइगर किंग भी जो अपने फाइनल अबॉर्ड है, ठीक है, जो ड्वेलिंग प्लेस जहाँ पर रहा जाता है, मीन्स स्वर्ग में अब वो है, उनसे इसलिए नहीं मिला जा सकता. इन अदर वर्ड्स, और अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो द टाइगर किंग इज़ डेड, कि जो टाइगर किंग है वो मर चुके हैं. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. It can be revealed only at the end of the tale. So the matter means the story of his death is very interesting and it should be revealed at the end only. Okay, the most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die. सो ये इंटरेस्टिंग क्यों है कि जिस दिन वो पैदा हुआ, द मोस्ट फंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज मीन्स डेथ, ओके, वो कि जैसे ही वो पैदा हुआ तो उनके जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो उन्होंने एक फोरटोल्ड मीन्स एक भविष्यवाणी की कि जो टाइगर किंग है वो एक दिन ज़रूर मारा जाएगा. सो व्हाट्स न्यू इन दैट, जो भी पैदा होता है वो मारा जाता है. तो यहाँ पर भी जो हमारे राइटर हैं उन्होंने बहुत ही ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करी है, और आई थिंक ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन दैट. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard. Here the astrologer is saying that this child would grow up to become the warrior of warriors, means ये योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरोज़ का हीरो, और चैम्पियंस का भी चैम्पियन होगा. बट अब यहाँ पर ये इतनी सारी इसकी क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करके यहाँ जो एस्ट्रोलॉजर है वो एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है, बट करके चुप हो जाता है. तो वो बोलता है कि और दे बाइट देयर लिप्स, कि जब व्हेन यू आर इन अ स्टेट कि व्हेन यू डोंट वांट टू टेल समथिंग ओमन, कि आप उसको नहीं बताना चाहते हो, यू स्वॉलड समथिंग इन योर थ्रोट, राइट, कि आप कुछ उसको सोलो करते हो कि बताएं या नहीं बताएं. सो सेम इट हैपेंड टू द एस्ट्रोलॉजर. तो वो बट कह के यहाँ चुप हो जाते हैं. एंड व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, लेकिन जब उनको कंपेल किया जाता है दैट ही मस्ट टेल what would be happen to the tiger king, तो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all. It's a secret that should not be revealed. And yet we are forced to speak out. But you people are forcing us to speak out. Okay? Then they have to tell all the truth. The child born under this star will one day have to meet its death. कि जो ये चाइल्ड है, मीन्स जो टाइगर किंग है, जो ये पैदा हुए हैं, इनको एक ना एक दिन जो है डेथ से मीट करना ही पड़ेगा. At that very moment a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lip of the 10-day-old Jalani Jung Bahadur, O wise prophet. See, here a miracle took place
क्या मिरेकल था वो कि अभी जो 10 दिन जिस बच्चे को पैदा हुए हैं, जलानी जंग बहादुर, जिसको हम टाइगर किंग के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या कहता है कि ओ वाइस प्रोफेट, कि हे बुद्धिमान जो पंडितों, everyone stood transfixed in stupefaction. Transfixed means here stand still in horror and stupefaction means amazement, कि वो बहुत हैरान हो जाते हैं और बहुत ही डर भी जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. They looked wildly at each other and blinked. वो एक दूसरे को देखते हैं हैरानी से और जो है अपनी आंखें झपकाते हैं. ओ वाइस प्रोफेट, इट वॉज आई हु स्पोक, कि हे बुद्धिमान पंडितों, ये मैं हूँ जो बोल रहा था. दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और अब जो है वो बिल्कुल भी कोई डाउट यहाँ पर नहीं था. क्यों? सब देख रहे थे कि जो वो 10 दिन का बच्चा है वो बोल रहा था. इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clear, कि ये जो बच्चा है वो इतने अच्छे से जो है क्लियरली जो है जो वर्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे से बोल रहा था. मीन्स 10 दिन का बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता, बच्चे को कम से कम भी साल भर लग जाता है बोलने में, और यहाँ पर 10 दिन का बच्चा था जो बात कर रहा था. The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the boy. अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है, जो पंडित है, वो जो बहुत ही हैरानी से अपने चश्मे से जो है उस बच्चे को देखते हैं. All those who are born will one day have to die. अब यहाँ जो टाइगर किंग है वो बोल रहा है कि those who have born, कि जो भी पैदा हुआ है उसको मरना है. We don't need your predictions to know that. हमें ये जो तुम्हारी जो predictions है ना, ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक दिन जो है वो मर जाऊँगा. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. कि ये ज़्यादा sensible रहेगा कि अगर आप मुझे ये बताएं कि मैं किस तरीके से मरूँगा. The royal infant uttered these words in this little squeaky words. मीन्स कि जो एक रॉयल इन्फेंट यानी कि जो टाइगर किंग है वो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप मुझे ये बताएं, वो बहुत ही यू कैन से हियर कि बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ में बोलता है कि आप मुझे ये बताएं कि जो मेरी डेथ है वो कैसे होगी. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. अब यहाँ पर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स जो एस्ट्रोलॉजर्स के जो हेड थे वो अपनी जो फिंगर हैं वो टाइगर किंग की नोज़ पर रखते हैं. अ बेबी बियरली 10 days old ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, कि एक 10 दिन का बच्चा जो कि अपनी बात बताने के लिए जो अपने लिप्स है उसको खोल रहा है, मीन्स अपनी बात बता पा रहा है. नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और इतना ही नहीं कि वो बोल पा रहा है, उसने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी जो है वो एस्ट्रोलॉजर से किया है. इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स विच हैव नो कंपैरिजन, शानदार. rather like the bulletin issued by the war office then facts. वो कहते हैं कि जितने भी जो भी बुलेटिन यानी कि जो समाचार होते हैं, जो भी न्यूज़ होती है वो वॉर ऑफिस से मिलती है. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. अब वो क्या करते हैं, चीफ एस्ट्रोलॉजर जो अपनी फिंगर है उसकी नोज से हटा लेते हैं और जो अपनी आइज़ है उसको देखते हैं लिटिल प्रिंस को. द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल. मीन्स आपने सुना होगा वृषभ नक्षत्र, ठीक है. तो वो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि जो प्रिंस है ये वृषभ नक्षत्र में पैदा हुआ है. द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज़, और जो बुल और टाइगर हैं वो क्या हैं, एनिमीज़ हैं. देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन. तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि बुल और टाइगर एनिमीज़ हैं तो जो इसकी जो डेथ होगी वो एक टाइगर के द्वारा होगी. You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger.
Okay, so here the quack means tremble. Okay, so here the यू मे थिंक, और आप ये सोच रहे होंगे कि जो क्राउन प्रिंस है जंग बहादुर, वो जो है वो डर के मारे काँप गया होगा. ट्रेम्बल मीन्स काँपना, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ. व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन. जब उन्होंने टाइगर वर्ड सुना तो एग्जैक्टली वही हुआ जो नहीं हो सकता था. मीन्स वो डरता नहीं है किसी से. एज सोन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, और जैसे ही उसने टाइगर वर्ड सुना, द क्राउन प्रिंस gave a deep growl. Growl means not a pleasant sound, means rough sound, right? तो जब वो सुनता है कि टाइगर, तो वो एक डीप ग्राउल जो है वो देता है, दहाड़ता है, लाइक एक रफ साउंड देता है कि ठीक है, आ जाए कोई भी टाइगर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा. Terrifying words emerged from his lips. Let's tigers beware. अब वो क्या बोलता है कि हाँ, टाइगर्स को डरने की ज़रूरत है. This account is only a rumor riff in प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम वो प्लेस है जहाँ पर ये टाइगर किंग पैदा हुआ था. और ये जो बात, जो प्रोफेसी यहाँ पर हुई, जो एस्ट्रोलॉजर्स ने की थी, ये र्यूमर की तरह जो है वो उस प्रतिबंधपुरम में फैल गई. बट with hindsight we may conclude it was based on some truth. लेकिन हम अंदर से, insight means हम अंदर से जब हमें इंस्टिंक्ट होती है कि हाँ ये बात सच है, तो यहाँ पर भी वहाँ के लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि हाँ ये बात सच है कि ऐसा कुछ होगा. Crown Prince जंग बहादुर grew taller and stronger day by day. अब जो जंग बहादुर है वो डे बाय डे जो है वो यंग हो रहे थे और भी लंबे हो गए थे. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. और उसके बाद जो ये जो भी प्रोफेसी हुई थी, उसके बाद कुछ भी ऐसा जो मेन इवेंट है या कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट इवेंट है उसके बाद बिल्कुल भी नहीं हुआ. द बॉय ड्रैंक द मिल्क, जैसे सब बच्चे मिल्क पीते हैं, तो इसने भी जो है दूध पिया. ऑफ एन इंग्लिश काउ वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी. और इंग्लिश गाय का ये दूध पीता था जो कि इंग्लिश नैनी लेकर आती थी. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और इसको जो है एक अंग्रेज़ जो है वो पढ़ाने आता था. सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, लेकिन ये सिर्फ जो है इंग्लिश फिल्म्स देखता था, पढ़ता नहीं था. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड. और वो भी वैसे ही था जैसे अदर इंडियन स्टेट के प्रिंस होते हैं, वो भी वैसा ही करता था. When he came of the age at 20, the state which had been with the court of words until then came into his hand. और जब वो 20 years का हो गया तो जो पूरा राजपाट है इसके हाथों में आ गया. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ears. अब क्योंकि ये बड़ा हो गया, क्योंकि प्रोफेसी हुई थी, तो जो जितने भी किंगडम यानी कि जो उसके राज्य में जितने भी लोग थे वो एस्ट्रोलॉजर के प्रिडिक्शन के बारे में बातें कर रहे थे. और ये जब बातें हो रही थी तो ये भी जो है राजा के कानों में आकर पड़ी. एंड देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट. दे हैड टाइगर्स इन देम. ओके, सो बहुत सारे, अननंबरेबल मीन्स बहुत सारे फॉरेस्ट वहाँ पर प्रतिबंधपुरम स्टेट में थे और उनमें टाइगर भी थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस. और महाराजा ये भी जानता था कि ये तो एक पुरानी कहावत है. ओल्ड सेइंग मीन्स पुरानी कहावतें. ऐसे कहा जाता है कि अगर आपको अपने सेल्फ डिफेंस में यानी कि अपने आप को बचाने के लिए किसी गाय को भी मारना पड़े तो वो बुरी बात नहीं है. देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस. और अगर आप एक गाय को मार सकते हैं तो टाइगर को मारने में जो है कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट. अब जो महाराजा है उसने टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दिया.
The Maharaja was thrilled beyond measure. When he killed his first tiger, he sent for the state astrologer and showed him the dead beast. Now Maharaja is starting killing the tigers. Then he killed a first tiger and then he show it to the astrologer. Okay, dead beast means जो मरा हुआ जानवर था. He showed to the astrologer. What do you say now? He demanded. अब वो उसको शो करता है कि देखो मैंने एक टाइगर को मार दिया है. और अब वो एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहोगे, क्या मैं टाइगर से मर सकता हूँ? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर इज सेइंग कि योर मैजेस्टी मीन्स कि हे राजा, आपको जो है वो 99 टाइगर्स को इसी तरह जो है और भी मारना होगा. बट वट, और उसके बाद जो अपनी बात ख़त्म करने के बाद वो बट यहाँ पर बोलता है कि लेकिन. अब पूछता है टाइगर किंग की लेकिन क्या. स्पीक विदाउट फियर, और वो बिना डरे उससे पूछता है. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन जो आप जब 100 जो टाइगर आप किल करोगे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. वट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, और तब क्या होगा जब मैं 100 जो 100वां जो टाइगर है उसको भी मार दूं. तो वो उसको चैलेंज करके बोलता है एस्ट्रोलॉजर को. देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड. तो यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी जो किंग है उसको बोलता है कि अगर 100 टाइगर मारा गया तो मैं जितनी भी मेरी बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की वो सब जो है वो उनको टीयर कर दूंगा, मीन्स फाड़ दूंगा और उनको जला दूंगा. और एंड अब यहाँ पर बोलता है कि और, तो राजा उससे पूछता है और क्या. आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट. टफ्ट होता है चोटी, ठीक है, जो पंडित लोग रखते हैं ना पीछे चोटी, तो उसको बोलता है कि आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं अपनी चोटी भी कटवा दूंगा. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स. और वो इतना भी चैलेंज जो है वो उसको किंग को करता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी टफ्ट को भी कट करवा दूंगा. क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. अब यहाँ पर भी ये बहुत बेतुकी बात लग रही है कि वो कहता है कि मैं अपने जो हेयर्स है उसको शॉर्ट करा दूंगा. यहाँ तक तो फिर भी ठीक है. एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट. इनकोहेरेंट नोट मीन्स कि जो है वो कुछ भी बात यहाँ पर मैच नहीं हो रही थी, इतना जो उसको रिजिडली वो नहीं बोलता तब भी चल जाता. डिसकनेक्टेड थी. इनकोहेरेंट मीन्स डिसकनेक्टेड बात, ओके, जो उससे मैच नहीं कर रही थी. From that day onward, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम. और उस दिन से जो है वो सभी जो प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर हैं उनके लिए सेलिब्रेशन टाइम था. अब यहाँ पर भी ये बात बहुत अजीब लग रही है कि सेलिब्रेशन टाइम क्यों था. द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling means uchalna, okay, so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. Confiscated means here means seized कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी. तो अब यहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन होता है, मीन्स एक यहाँ पर सबको अवेयर कर दिया जाता है. अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन मीन्स अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट होती है कि अगर किसी ने इतनी भी जुर्रत की कि वो टाइगर की तरफ पत्थर भी फेंक के मारे तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को जो है वो सीज्ड कर दिया जाएगा, मीन्स महाराजा की प्रॉपर्टी में मिला दिया जाएगा. द महाराजा वॉड ही वुड अटेंड to all other matters only after killing the 100 tigers. अब यहाँ पर महाराजा कसम खाता है कि वो जितने भी उसके राज्य के मैटर्स हैं वो उसके 100 टाइगर को मारने के बाद ही वो टाइगर्स को मारने के बाद ही वो देखेगा. Initially the king seemed well set to realize his ambition.
Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its marks. The tiger leapt upon him and he fought them. See here, not that he faced no danger, और उसको कोई भी जो डेंजर है वो फेस नहीं करना पड़ा महाराजा को. There were times when the bullet missed its marks, और जो है वहाँ पर एक टाइम ऐसा भी था जब जो बुलेट है वो मिस कर जाती थी अपने मींस टारगेट को. द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और जो टाइगर है उसके ऊपर उछलता था. एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, मीन्स यहाँ पर इतनी बहादुरी उसकी बताई गई है कि जब जो बुलेट मिस हो जाती थी तो वो बेयर हैंड जो है उस जो टाइगर से वो लड़ता था. ईच टाइम इट वॉज द महाराजाज हु वॉन, और हर बार जीत किसकी होती थी? महाराजा की. एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो अपना जो थ्रोन यानी कि जो राज सिंहासन है उसको खो सकता था. एंड व्हाट वाज इट? लेट्स सी. A high-ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम. एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो कि प्रतिबंधपुरम में उसकी पोस्टिंग हुई थी. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उसको भी टाइगर्स जो है हंट करने का बहुत शौक था. एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शूट, और उसको जो भी टाइगर्स को वो शूट करता था ना उसके साथ उसको फ़ोटो लेने का बहुत अच्छा लगता था. एज़ यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. अब प्रतिबंधपुरम में क्योंकि आया था और उसने सुना था कि यहाँ भी बहुत सारे टाइगर हैं, तो उसने अपनी जो विश है उसको जो है बताया कि वो वहाँ पर जो है टाइगर हंट करना चाहता है. बट द महाराजा वॉज फिर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन यहाँ पर जो उसने अपनी कसम खाई थी वो उस पर रिजिड था महाराजा. ही रिफ्यूज्ड परमिशन, और उसने परमिशन देने से मना कर दिया. किसको? ब्रिटिश ऑफिसर को. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, और वो उसको क्या मैसेज भिजवाता है कि हम जो है वो कुछ भी जो हंट है आपके लिए ऑर्गेनाइज करा सकते हैं. यू मे गो ऑन अ बोर हंट. बोर हंट होता है जो जंगली सुअर होते हैं, ठीक है, आप उसको हंट कर सकते हो. यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप चूहे को भी मार सकते हो. वी वर रेडी फॉर अ मॉस्क्विटो हंट, और हम जो है वो मच्छर के हंट के लिए भी रेडी हैं अगर आप करना चाहें हमारे राज्य में. बट टाइगर हंट, दैट्स इम्पॉसिबल. लेकिन टाइगर हंटिंग इज इम्पॉसिबल. द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू महाराजास थ्रू द दीवान दैट द दुरई himself did not have to kill the tiger. दुरई मीन्स यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर के लिए ही बोला गया है कि वो खुद जो है उसको नहीं मारेंगे. द महाराजा could do the actual killing, और महाराजा जो है वो एक्चुअल किलिंग कर सकते हैं, मीन्स वो खुद जो है टाइगर्स को मार सकते हैं. वट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई, यानी कि दुरई मैंने पहले भी बताया आपको ब्रिटिश ऑफिसर के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है. वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्केस, कि सिर्फ वो फ़ोटो खिंचवाएगा और जो उसका जो कार्केस है यानी कि जो डेड बॉडी है उसके साथ वो एक फ़ोटो चाहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा जो है वो इस प्रपोजल के लिए भी रेडी नहीं होता. इफ़ ही रिलेंटेड हाउ नाउ what would he do if other British officers turned up for tiger hunt. अब वो ये सोचता है कि अगर जो है ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग के आइडिया से पीछे हटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा. Because he prevented the British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. बट अगर वो कहता है कि अगर उसने उसको रोका ब्रिटिश ऑफिसर को तो उसको अपने राज्य से हाथ धोना पड़ेगा. द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिबरेशन ओवर दिस इशू. वो आपस में डिस्कस करते हैं महाराजा और दीवान. एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, sent samples of expensive diamond rings in different designs. अब दोनों के दोनों विचार विमर्श करते हैं. डिलाइबरेशन मीन्स विचार विमर्श करना किसी इशू पर.
राइट। तो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या निकल कर आता है कि वो एक जो है टेलीग्राम को भेजते हैं और उस टेलीग्राम के साथ जो है राजा बहुत सारी डायमंड की एक्सपेंसिव जो रिंग्स हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर के पास पहुंचाते हैं, जो कि ब्रिटिश कंपनी की एक ज्वेलर्स हैं, उनसे उन्होंने ख़रीदे थे। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और कितनी रिंग्स वो भेजते हैं सैंपल के तौर पे? 50 रिंग्स। द महाराजा सेंड द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और ये जो होल लॉट था ना वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो वाइफ्स हैं उनके लिए उसने भेजा था। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुर्रानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब राजा को और उसके दीवान को क्या लगा था कि जो ये ब्रिटिश ऑफिसर है ना वो 1-2 रिंग्स को चूज़ करेंगे और जो बाकी की जो रिंग्स हैं उसको वापस कर देंगे। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुर्रानी सेंट हर रिप्लाई। दुर्रानी मीन्स उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को यहाँ पर कहा गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, मीन्स वो पूरी 50 की 50 जो रिंग्स है वो रख लेती है। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. See, उस टाइम पे जब ये स्टोरी लिखी गई या जिस टाइम पीरियड की ये बात की गई है तो 350 lakhs was अ ह्यूज अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट था। तो 2 दिन के बाद उसको बिल मिलता है 3 लाख का, राइट। तो वो कहते हैं ब्रिटिश ऑफिसर जो ज्वेलर होते हैं उसकी तरफ से, और महाराजा लेकिन इससे भी खुश होता है कि कोई बात नहीं कि जो उसको जो 3 लाख रुपीज़ है वो उसने लॉस्ट कर दिए, बट वो अपने राज्य को बचाने में कामयाब रहा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल डू द सेकेंड पार्ट इन द सेकेंड वीडियो। थैंक यू सो मच।